Welcome students in my YouTube channel. Today we learn about the topics Above principle, Bohr-Bury rule, Pauli's exclusion principle and the electronic configuration of elements. These are the very important topics for class 11th students, and without the understanding of electronic configuration in chemistry, a student cannot learn various things, because it is the important factor related to the elements. So let me study the topic above principle. Above principle. What is above principle? The term above is not the name of a scientist. Its means is to build up. Above means to build up. To build up. The statement of above principle is: in ground state of atom, an electron enters in the orbital of lowest energy first, and subsequent electrons are fed in the order of increasing energies. So we can write here, in ground state of the atom, an electron enters in the orbital of lowest energy first. Lowest energy first, and the subsequent electrons are fed, and subsequent electrons are fed in various orbitals in the order of increasing energies of atomic orbitals. So this is the statement of above principle. In ground state of the atom, an electron enters in the orbital of lowest energy first, and subsequent electrons are fed in the various orbitals in the order of increasing energies of atomic orbitals. Now the electrons are filled in various orbitals in this pattern as 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d. So the orbitals are given in the order of increasing energies. कैसे? देखिए 1s, then 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, then 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s. ओके, तो इस पैटर्न को हम कैसे समझ पाए, उसके लिए यहाँ पर हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं. Look here, this is 1s, then 2s, then 3s, then 4s, 5s, 6s और ये 7s, then 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और ये 7p, then 3d,
4d, 5d, 6d। 7 में भी d होता है लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन 4f, 5f, 6f, यहाँ तक ही इससे काम चल जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, the electron first enter in the 1s orbital and then remaining electron enter in the 2s orbitals, then remaining electron 2p orbital and then 3s orbitals and then 3p 4s orbitals, then 3d 4p and 5s orbitals and then 4d 5p 6s orbitals, then 4f 5d 6p and 7s orbitals. In this pattern you can fill the electron very easily. Never makes a mistake in the filling of electrons. If you want to give the arrangement of electron on this way, so you can take any one example. For example, we consider here scandium 21. Okay, so this is 1s2 according to above principle, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। देखिए यहाँ पर इसके ही अकॉर्डिंग भरा है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको इसके साथ और बता देना चाहता हूँ कि जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। तो देखिए पी सबशेल में, सॉरी सबसे पहले हम लेते हैं एस सबशेल। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे एक सबशेल में। एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, एन ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये तो सबशेल के लिए हो गया और ये ऑर्बिटल्स के लिए। ये इलेक्ट्रॉनों का फिलिंग जो है वो सबशेल के अकॉर्डिंग हो रहा है। सबशेल में ही ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसमें आप मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन से के इक्वल और उनसे कम तो भर सकते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं कर सकते। एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया किसका, ब्रोमीन का ले लिया, एटॉमिक नंबर है 35। अकॉर्डिंग टू अबव रूल, इफ वी fill the electrons in bromine, then we have 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Then you can count the number of electrons, 10 and 10, 20, 30, 35. So this is according to Abau's principle. Now another rule related to the electronic configuration is Bohr-Bury rule. Bohr-Bury rule for filling of electrons. Bohr-Bury rule for filling of electrons. This rule was given by Bohr and Bury collectively, and according to this rule, the orbitals fill in the order of increasing value of n plus l. Orbitals fill in the order of increasing value of n plus l. n plus l का मतलब n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर हम n और l की बात करें
तो इसमें देखिए बात होती है हमारी, जैसे 4s 3d, कोई एग्जांपल हमने ले लिया। फॉर एग्जांपल 4s and 3d orbitals are given. Orbitals 4s and 3d orbitals are given, which will fill first. तो यहां पर पहले कौन सा भरा जाएगा, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम होगी। ठीक है, मैंने लिखा ना, द ऑर्बिटल्स फिल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n प्लस एल, मीन्स पहले n प्लस एल की कम वैल्यू वाला, फिर उसके बाद ज़्यादा वैल्यू वाला। तो देखिए 4s के लिए यहाँ पर देखिए n की वैल्यू तो हो जाएगी, इसके लिए n की वैल्यू तो हो जाएगी 4 और l की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी 4 प्लस 0 इज इक्वल टू आएगा 4। इसका n प्लस एल क्या आ जाएगा, n प्लस एल आ गया आपका 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। और 3d के लिए हम बात करें तो इसमें n तो हमारा है 3 और l की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो n प्लस l हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 2 दैट इज 5। तो इसका मतलब हुआ कि n प्लस l की वैल्यू जो है 4s के लिए कम है, इसलिए 4s filled first. So this is the arrangement according to Borbori. What happens in case of the same value of n plus l? Which orbital will be filled first? In case of same values of n plus l, in case of same values of n plus l, the orbital with lower value of n will be filled first. क्या? In case of same values of n plus l, the orbital with lower value of n will be filled first. For example, in case of 2p and 3s, तो पहले 2p के लिए देखें, for 2p n is equal to 2 and l is equal to 1, that is n plus l is equal to 2 plus 1 3, and for 3s n is equal to 3 or l is equal to 0, that is n plus l is equal to 3 plus 0, that is 3. But here we can see the value of n is lower for 2p. The value of n is 2. So 2p will be filled first. 2p will be filled first, then 3s. Okay. Next term is electronic configuration. Electronic configuration. तो इसका मतलब क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Electronic configuration can be done by using above principle and Bohr-Bury rule. So एग्जाम्पल ले लें कुछ. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन 7 अकॉर्डिंग टू अबाउट 1s2 2s2 1s2 2s2 2p3. सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1. क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6
3s2 3p5। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय इसमें कॉमा नहीं लगाना है, ऐसे ही आपको लिखते जाना है एंड तक, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी बड़े एलिमेंट का लिखना हो उसके लिए आप बना लीजिए यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबव रूल। तो आप इसको जल्दी से ऐसे करके बनाएंगे। एटॉमिक नंबर है 56, एलिमेंट है बेरियम 56। अब इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो याद रख पाना मुश्किल है, इसलिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है। तो कैसे इसको भरेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग कर लीजिए, 10 हो गए, 10 20 हो गए, 10 30 हो गए, ठीक है। अब आ गए हम कहाँ पर, 4p6 पर आ गए। उसके बाद में आता है आपका 5s2, 5s के बाद आता है आपका 4d 10 और 4d10 के बाद आता है 5p6 और उसके बाद आता है 6s2। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। काउंटिंग कर लें इलेक्ट्रॉन की, देखिए 10 10 20 10 30 30 और 38 48 48 और 2 50 और 56, ठीक है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे 56। किसी भी एलिमेंट का दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसके लिए, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। तो आप लोग साथ में इसके इस टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस भी करें। नेक्स्ट टर्म इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल no two electrons in an atom can have all four quantum numbers same. No two electrons in an atom can have all four quantum numbers same. कैसे इसको एक्सप्लेन करें, हमने एग्जांपल ले लिया। फॉर एग्जांपल वो आपका, सपोज आपने ले लिया फ्लोरीन 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल 1s2 2s2 2p6। ओहो, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल क्या होगा, देखें 1s2 2s2 2p5। here the p subshell of second orbital contain 5 electrons and the filling of these ऑर्बिटल्स इन p। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 को इस तरह से भरें 1 2 3 4 5। ये तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई। पहले सिंगल सिंगल भरे जाएंगे और उसके बाद में फिर कंप्लीटली फिल कर देंगे, पेयरिंग कर देंगे। ये होता है हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग देखिए, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन दो इलेक्ट्रॉन्स की जो एक ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। सपोज ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये कौन कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए, देखिए 2 2 4 4 के बाद 5 6, यानी एक तो इलेक्ट्रॉन हो गया 6 और 6 के बाद 7 8 9 और एक इलेक्ट्रॉन हो गया 9। तो 6 और 9 इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पर क्वांटम नंबर्स की वैल्यू देखें तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया क्वांटम नंबर और यहाँ पर लिख दिया 6th इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर लिख दिया 9th इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमने लिया वैल्यू ऑफ n, कौन सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए n की वैल्यू इस 2 से आएगी। देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए
ये वैल्यू सेम है, तो ये हो गई 2। ठीक है, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देन एल, पी के लिए ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ क्या कि एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए एल की वैल्यू 2 और एफ के लिए एल की वैल्यू जो है वो 3 होती है। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन पी में है, तो इसलिए एल की वैल्यू 1 हो जाएगी और इसके लिए भी 1 हो जाएगी। देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हो गए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए हम यहाँ पर देखते हैं एल की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू यहाँ पर -1, 0 और +1 3 वैल्यू होंगी। वो वैल्यूज हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए -1, 0 और +1। ठीक है, इस तरह से हमने लिख ली। अब ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रॉन दोनों तो इसी में आ रहे हैं, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों के लिए 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर में देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट स्पिन में है। एक के लिए हमें क्या लेना है, s की वैल्यू पॉजिटिव हाफ, और दूसरे के लिए लेना है हमें नेगेटिव हाफ। क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव हाफ ली जाती है, ये हो गई +हाफ, और इसके लिए ये हो गई -हाफ। तो क्योंकि ये स्पिन है, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर में आप लोगों ने सीख लिया है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं अपनी एक्सेस पर या न्यूक्लियस के चारों ओर। तो उस समय ये वैल्यू यहाँ पर डिटरमाइन की जाती है, क्लॉकवाइज के लिए +हाफ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -हाफ। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो ऑब्जर्वर है वो किस तरह से उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो वैसे तो +हाफ या -हाफ एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोई वैल्यू दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर हमने अपनी सहूलियत के लिए ये वैल्यूज ले ली हैं। नेक्स्ट वन इज हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी तो क्या है ये हुंड्स रूल? देखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग एक सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनमें तब तक नहीं होगी जब तक कि सभी ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड ना हो जाएं। ठीक है, तो इसे हम कैसे बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन द ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग will not take place in the orbitals of same energy, that is degenerate orbitals, until all the orbitals gets singly filled. Okay, or you can say in other words, electrons are distributed among the orbitals of a subshell in such a way as to give the maximum number of unpaired electrons with the parallel spins. तो इसके लिए भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखें, और दूसरे तरीके से आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल इन अ मैनर to give the maximum number of unpaired electrons with parallel spins. So Hund's rule can be understood by giving an example related to it. क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5,
दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर जरा हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग देख लें। ये क्या है, पी सब शेल है, पी सब शेल। तो इस पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करनी है, तो अगर आपने कहीं ऐसे कर दी पहले ही 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह की पेयरिंग करना गलत होगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। पेयरिंग कैसे करनी है आपको, देखिए पेयरिंग ऐसे करनी है, सबसे पहले आप जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 1 1। ये कंडीशन हो गई जिसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन ले लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। देन रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग करेंगे यहां से 1 2। तो ये हो गया 3p5। आप किसी डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए भी ले सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हमने ले लिया, देखिए यहाँ पर निकल है 28 एटॉमिक नंबर, तो निकल के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। so in 3d8 the pairing of electron takes place in such a manner 1 2 3 4 5। देखिए डी ऑर्बिटल्स के नॉमेनक्लेचर भी बता दूं आपको, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये वाला डी जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग 1 1 इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन आप फिल करेंगे इसमें सभी ऑर्बिटल्स में। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 3 हैं उनकी पेयरिंग करेंगे 1 2 और ये 3। So this is according to above principle. So if you learn these 4 rules or principles, then you can write the electronic configuration and understand the element in different groups and periods, and you can understand the various properties of that particular element having a particular atomic number. Okay, so स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, इनको आप ज़रूर पढ़िए केमिस्ट्री में, क्योंकि ये बेसिक क्राइटेरिया हैं केमिस्ट्री के। सो स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें और आप हमसे मिलते रहें नए नए वीडियोस के साथ में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।